Good morning everyone. Welcome to your maths class. So students, in last class we have completed till the question number 10 from the exercise 3.5. Okay, and today we will be solving the remaining questions from the same exercise, which are question number 11 onwards. Okay, so today I'm going to solve question number 12, question number 13 and question number 15. Okay, so today I'm going to solve question number 12, 13 and 15 in the classwork, and remaining questions, which are question number 11 and question number 14, which you have to solve on your own in your homework. Okay, so basically these all questions are the word problems. Okay, word problems of subtraction. So let's begin with the first question from today's class, question number 12. So we will read the question carefully first. Question number 12. Out of 425 books in a library, 268 books were issued to the students. How many books are still in the library? So here in the library there are 425 books, and out of those 425 books, 268 books were issued to the students. Now we have to find how many books are there in the library after issuing the books to the students. यहाँ पे एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 425 बुक्स है टोटल. ओके, टोटल कितने बुक्स है लाइब्रेरी के अंदर? 425. उन 425 में से 268 बुक्स क्या करे हैं? स्टूडेंट्स को इशू करे, मतलब स्टूडेंट्स को दिए गए हैं. अब 425 में से 268 कम हो गए, मतलब उनको इशू कराया गया है बाकी बच्चों को. इसलिए अभी हमें पता करना है कि उस लाइब्रेरी के अंदर अभी फ़िलहाल कितने बुक्स मौजूद है आफ्टर इशूइंग दोज बुक्स टू दी स्टूडेंट्स. बच्चों को बुक्स इशू कराने के बाद अब कितने बुक्स बचे हैं लाइब्रेरी के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, so first of all we will write down the data given over here in the words. Okay, because this is the word problem. So first of all we will write total number of books in library is equal to 425. लाइब्रेरी के अंदर कितने बुक्स है टोटल? कुल मिला के 425. Next, number of books issued to the students. How many books are issued to the students? It's 268. स्टूडेंट्स को, मतलब बच्चों को कितने बुक्स इशू कराए हैं? स्टूडेंट्स को 268 बुक्स क्या करे हैं? इशू कराए हैं. ठीक है, एंड लास्टली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? नंबर ऑफ बुक्स स्टिल लेफ्ट इन लाइब्रेरी. मतलब इशू कराने के बाद, बच्चों में बुक्स बांटने के बाद कितने बुक्स लाइब्रेरी में अभी फ़िलहाल मौजूद है, कितने बुक्स अभी बाकी है. ठीक है, सो to find out the number of books left in the library, what we have to do over here is, over here we need to subtract the number of books issued to the students from the total number of books in the library. अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि लाइब्रेरी के अंदर कितने बुक्स अभी बचे हैं इशू कराने के बाद, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्शन. और सब्ट्रैक्शन कैसे करना पड़ेगा? हमें जो बुक्स बच्चों को दिए हैं उनको, मतलब 268 को कम करना पड़ेगा, माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी से, मतलब 425 में से. तो ठीक है, तो चलो लिखो, इसको वर्ड्स में लिखना है पहले. नंबर ऑफ बुक्स स्टिल लेफ्ट इन लाइब्रेरी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी माइनस number of books issued to students. Okay, so you have to follow the same steps, the steps which I have followed while solving the problem. Okay, जैसे मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जो जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं वही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं. ठीक है, तो हमने ये लिख लिया कि लाइब्रेरी के अंदर कितने बुक्स है, वो है
total number of books in the library minus number of books issued to the students. Okay, so number of books left in library is equal to 425, which is the total number of books in the library, minus 268. What is the 268? It is number of books issued to students. Okay, now do the subtraction with the help of column form. ओके, कॉलम फॉर्म यूज करके सब्ट्रैक्शन कर लो. 425 माइनस 268 क्या आएगी सब्ट्रैक्शन? व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द सब्ट्रैक्शन? इट्स 157. नाउ 157 क्या है? नंबर ऑफ बुक्स स्टिल लेफ्ट इन लाइब्रेरी. तो इसको अब आप वर्ड्स में लिख लो, बिकॉज दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम. वी हैव टू राइट आवर आंसर इन द वर्ड्स एज वेल. ठीक है, तो इसको सेंटेंस में लिखो. नंबर ऑफ बुक्स स्टिल लेफ्ट इन लाइब्रेरी आफ्टर इशूइंग इज 157. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 13. By how much is 400 greater than 307? So here they are asking us by how much the number 400 is greater than the number 307. That means हमें already पता है कि 400 is greater than 307, but we don't know what is the difference between these two numbers. So we need to find the difference between these two numbers by the subtraction, and then we can say that by how much 400 is greater than 307. यहाँ पे हमें दो नंबर्स दिए बच्चों, 400 and 307. इन दो नंबर्स में से हमें पता है 400 बड़ा नंबर है 307 से, बट हमें पता नहीं है कि 400 307 से कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है. तो इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पहले दोनों नंबर का डिफरेंस, दोनों नंबर में कितना डिफरेंस आएगा वो फाइंड आउट करो. और दोनों नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस वी नीड टू डू द सब्ट्रैक्शन. जब भी हमें किसी दो नंबर का फ़र्क पता करना है या डिफरेंस पता करना है, तब हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. तो हमें डिफरेंस मिल गया दोनों नंबर्स का, तो अब हम बता सकते हैं कि जो 400 है वो 307 से कितने नंबर से बड़ा है. ठीक है, सो स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. Difference between 400 and 307 is equal to 400 minus 307. To find the difference between the given two numbers, what we have to do over here is we have to do the subtraction. So subtraction में हमेशा हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को कम करते हैं ना. We always subtract a lesser number from the greater number. तो इसीलिए 400 minus 307. अब इसको कॉलम फॉर्म में लिखो, 400 माइनस 307. और सब्ट्रैक्शन क्या आता है, डिफरेंस क्या आता है वो फाइंड आउट करो. डिफरेंस आएगा 93. ओके, अब डिफरेंस पता चल गया. 400 और 307 में कितने का डिफरेंस है? 93 का. तो डिफरेंस बिटवीन 400 एंड 307 इज इक्वल टू 93. नाउ वी कैन से दैट, आंसर लिखो, अभी सेंटेंस में लिखो. डिफरेंस पता चल गया 93 है. अब उसको आंसर में लिखो, बिकॉज वी हैव टू टेल दैट बाय हाउ मच इज 400 ग्रेटर दैन 307. तो यहाँ पे सेंटेंस में लिखना है 400 इज ग्रेटर दैन 307 बाय 93. ये जो 400 है वो 307 से कितना बड़ा है? 93 से बड़ा है. ओके, so write down 400 is greater than 307 by 93. Next, question number 15. The last question from today's class. Okay, Kanu had rupees 183 with him. He bought a book for rupees 59. Estimate the amount left with him. यहाँ पे एक hint भी दिया है. Hint, round off to tens. Okay, to find out the estimated amount left with him, here we need to round off the numbers to the tens. Okay, tens को round off करके फिर हम estimated amount left with him find out कर सकते हैं. पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ पे कनु नाम का एक लड़का है, उसके पास टोटल 183 रुपीज़ है. उसके पास कितने पैसे हैं? रुपीज़ 183. उसमें से उसने रुपीज़ 59 खर्च कर दिए, मतलब ही बॉट अ बुक.
कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं, अपने पैसे देने पड़ते हैं। तो उसने ये जो बुक खरीदी है जिसकी प्राइस है 59 रुपीज़, उसने 59 रुपीज़ में एक बुक खरीदी है, मतलब उसके पास जो पैसे थे 183, उसमें से ये जो 59 रुपीज़ है वो खर्च हो गए, वो कम हो गए। अब हमें पता करना है कि बुक खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच गए हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, बिकॉज ही हैड बॉट अ बुक ऑफ ₹59, दैट मीन्स ही हैड given ₹59 to buy that book, and this 59 rupees has to be subtracted from the total money which Kanu had with him. तो Kanu had with him ₹183, that is why हमें 59 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ₹183 से, तब जाके हमें पता चलेगा कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम। बट यहाँ पे हमें एक्चुअल डिफरेंस नहीं फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या बताया, एस्टिमेट द अमाउंट लेफ्ट विथ हिम, मतलब हमें एस्टिमेट करना है यहाँ पे, ठीक है। एंड यू नो हाउ टू एस्टिमेट द डिफरेंस। टू एस्टिमेट द डिफरेंस वी नीड टू डू द राउंडिंग ऑफ द, we need to round off the given numbers to the tens, okay। तो पहले हम पता करते हैं डिफरेंस, फिर एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम, सो वी विल राइट ऑल द डाटा ओवर हियर इन द वर्ड्स एज वेल। सो फर्स्ट, टोटल मनी कनु हैड, कनु के पास कितने पैसे हैं, कुल मिला के उसके पास कितने पैसे हैं, ₹183, ओके। नेक्स्ट, cost of a book, how much is the cost of the book, it is ₹50. Sorry students, my video got interrupted in between due to a phone call, so we will continue from the point where we will resume from the point where we had stopped, okay। So cost of a book is equal to ₹59. What is the cost of a book? It is ₹59. That means उसने ₹59 में ये बुक खरीदी है और उतने पैसे, मतलब 59 रुपीज़ उसने खर्च किए जो उसके पास पैसे थे उसमें से, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड ओवर हियर, एस्टिमेटेड अमाउंट लेफ्ट विथ हिम। अमाउंट मीन्स मनी, उसके पास कितने पैसे बच गए हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं, एक्चुअल नहीं, एस्टिमेटेड, ओके। So start solving. Amount left with Kanu. तो हमें to find out amount left with Kanu, what we have to do is we have to do the subtraction. Total money Kanu had minus cost of a book. Okay. Estimated amount लेफ्ट विथ कनु फाइंड आउट करने से पहले हमें एक्चुअल अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है वो लिखना है, फिर हम एस्टिमेटेड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे अमाउंट लेफ्ट विथ कनु इज इक्वल टू टोटल मनी कनु हैड माइनस कॉस्ट ऑफ अ बुक। तो ये जो कनु के पास कितने पैसे बच गए हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पास जितने पैसे थे उसमें से हमें, उसने बुक जितने पैसों में खरीदी है तो बुक की कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए टोटल मनी कनु हैड इज हाउ मच, इट इज ₹183। तो 183 माइनस कॉस्ट ऑफ अ बुक, कॉस्ट ऑफ अ बुक कितना है, ₹59, ओके। सो 183 माइनस 59। और ऐसे क्यों कर रहे, क्योंकि उसके पास 183 रुपीज़ थे, उसमें से उसने 59 रुपीज़ दे के, अपने पास जितने पैसे थे उसमें से 59 रुपीज़ खर्च करके उसने एक बुक खरीदा। इसका मतलब जो टोटल मनी है उसमें से 59 क्या होंगे, कम होंगे, माइनस होंगे, ठीक है। नाउ हमें पता है क्या है सब्ट्रैक्शन, अब हम एस्टिमेटेड अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। 183 माइनस 59 है। अब इसका एस्टिमेटेड डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा 183 और 59 को टू द नियरेस्ट टेंस, ओके। सो हियर एस्टिमेटेड अमाउंट लेफ्ट विथ कनु, ऐसे हेडिंग दो, ठीक है। देयरफॉर अभी एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड करनी है ना, अमाउंट, एस्टिमेटेड अमाउंट लेफ्ट विथ कनु, इसीलिए हमने क्या करना है,
देयरफॉर, ये 3 डॉट का मतलब है देयरफॉर, दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है इट सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट. ओके, राउंडिंग ऑफ 183 एंड 59 टू टेंस, इसका मतलब हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 183 और 59 को टू टेंस. कहाँ राउंड ऑफ करना है? टू द नियरेस्ट टेंस. ओके, क्यों राउंड ऑफ करना है? क्योंकि हमें एस्टिमेटेड अमाउंट फाइंड आउट करना है. सो 183 को राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट टेंस. कहाँ राउंड ऑफ करना है? नियरेस्ट टेंस. सो टेंस प्लेस के बाद कौन सी प्लेस आती है? वंस प्लेस. सो वंस प्लेस की डिजिट को आप करोगे कंपेयर किससे? 5 से. सो वंस प्लेस में क्या है? 3 कंपेयर्ड विथ 5. सो 3 इज लेसर देन 5. इसका मतलब ये जो टेंस प्लेस की डिजिट है 8 वो चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज़ लिखेंगे. और 100 प्लेस जो पहले का प्लेस है उसको भी वैसे ही लिखेंगे. सो 100 प्लेस में 1 आएगा, टेंस प्लेस में 8 आएगा, और जो वंस प्लेस का डिजिट है उसको राउंड ऑफ करेंगे. सो जो ये वंस प्लेस की डिजिट है 3 उसको राउंड ऑफ करो 0 के साथ. सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ 183 टू द टेंस वी विल गेट 180. ओके, नेक्स्ट नंबर कौन सा राउंड ऑफ करना है? 59. सो 59 को राउंड ऑफ करना है टू द टेंस, मतलब टेंस से राउंड ऑफ करना है, इसलिए हम कौन से प्लेस की डिजिट को कंपेयर करेंगे? वंस प्लेस की डिजिट को. वंस प्लेस में क्या है? 9. 9 को कंपेयर करो 5 से. सो 9 इज ग्रेटर देन 5. इसका मतलब टेंस प्लेस में जो नंबर है, जो डिजिट है 5, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1. 5 + 1 इज इक्वल टू 6. सो ये क्या हो गया? 6. दैट मीन्स टेंस प्लेस की डिजिट को हम रिप्लेस करेंगे 6 से, और वंस प्लेस की डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे 0 से. सो 59 विल बी राउंडेड ऑफ टू दी 60. ओके, नाउ वी कैन फाइंड आउट द एस्टिमेटेड डिफरेंस. ठीक है, so 180 minus 60, what will be the answer? 120. So this is the answer, but we have to write this answer in the sentence as well because it's the word problem. ये हमें numbers में मिल गया आंसर, अब इसको हम words में लिखेंगे. ठीक है, therefore estimated amount left with Kanu is ₹120. So in this way we have finished with the exercise 3.5, and if you have not understood any of these questions you can ask me. Till then, thank you, have a nice day.